Yes, guys, very good evening. Am I audible to you? आवाज आ रही है guys? ओके, तो कल तक हमने डिस्कस किया था that was how to determine nominal shear stresses, shear strength of the concrete and the maximum shear stresses that must be developed within the concrete. ठीक है, तो आज हम आगे इस टॉपिक को लेके जाएंगे. First of all, today we will first of all discuss that about critical section for shear. Critical section for shear. If we talk about critical section for shear, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वन वे शेयर का डिस्कस करेंगे कि वन वे शेयर के अंदर क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है. वन वे शेयर के अंदर क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है. यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, इफ योर सपोर्ट विल बी अंडर द कंप्रेशन और इफ देयर विल बी द कन्फाइनमेंट ऑफ द कंक्रीट एट द सपोर्ट. फॉर एग्जांपल, वी हैव दिस बीम and this beam is resting over simple support. So the simple support will exert reaction, and this reaction will induce the compression in the beam portion. Beam portion में क्या करेगा, compression induce कर देगा. So in this case we can say the critical section, in this case we can say the critical section will be at distance effective depth from the face of support. Face of sport से आपको effective depth distance आप लोगे, that will be the critical section. So you need to check the shear strength of the concrete at that very particular critical section. तो आपको shear strength जो है concrete की as well as nominal shear stresses वो आपको इस critical section पे चेक करना है. वो आपको इस critical section पे चेक करना है. लेकिन इसके लिए कंडीशन है. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि या तो मेरे पास यूडियल हो, लोड जो है या तो एक यूडियल की फॉर्म में हो, या फिर अगर वो कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड लोड मस्ट बी एट डिस्टेंस एटलीस्ट 2d अवे फ्रॉम द फेस. ये जो डिस्टेंस है कंसंट्रेटेड लोड का, दैट मस्ट बी एट डिस्टेंस 2d, दैट शुड बी मोर देन 2d. दिस x शुड बी मोर देन 2d. अगर ये 2d से कम हुआ, ठीक है, अब ये तो है, ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ गई. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट कि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड लोड हो दैट मस्ट बी एट डिस्टेंस एटलीस्ट 2 times the d from the face of the support. In this case we can say that the critical section will be at small d from the face of the support. But in case if concentrated load is not at 2d, if concentrated load is not at distance 2d, it is basically between 2d. अगर वो 2d के बीच में लाई करता, concentrated load is somewhat here, ठीक है, it is in between 2d, ठीक है, then in that very particular case the critical section, in that very particular case the critical section will be at the face of support. फोर्स अपने क्या कहते हैं सपोर्ट के फेस पर ही हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन बन जाएगा. क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट द फेस ऑफ द सपोर्ट. इज इट क्लियर? ये पहला केस था इन विच देयर विल बी द रिएक्शन एंड रिएक्शन विल इंड्यूस कंप्रेशन. रिएक्शन विल इंड्यूस कंप्रेशन दोनों केसेस में, ठीक है. So this is the first case. In second case, when there will not be any such kind of reaction, like in case of the floor of water tank. Water tank के फ्लोर में ये स्टार्टिंग से बताना, थोड़ा लेट कनेक्ट हो गया सर. लेट कनेक्ट है तो आप फिर बाद में देखिएगा, ठीक है, दोबारा रिपीट करना डिफिकल्ट है. मैं आपको फिर भी हल्का सा कहते ब्रीफ कर दूंगा. अब आप लोग अगर इसमें देखें, वाटर टैंक का अगर हमारे पास बेस है, वाटर टैंक के बेस पे if we have water tank base, in the base of water tank you can see there will be upward reaction like this. इस तरीके से ऊपर को जाएगा
एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी. दे विल नॉट बी बेसिकली कंप्रेशन, दे विल बी द टेंशन. इन दिस केस द क्रिटिकल सेक्शन will be, in this case the critical section will be at the face of the sport. The critical section will be at the face of the sport whenever there will be no such kind of compression. ठीक है, एक बार दोबारा देख लो. कहते ब्रीफ में, अगर हमारे पास कंप्रेशन है and your beam is subjected to uniformly distributed load or concentrated load at distance at least 2d away from the sport, in that very particular case the critical section for one way shear will be at distance d away from the face of the sport. ठीक है, but if your concentrated load is within the distance 2d, if your concentrated load is within the distance 2d, then the critical section will be at the face. Then the critical section will be at the face. And if we have tension like conditions, example in case of the floor of water tank, the critical section will be at the face of the sport. Okay, so these are the critical condition under the one way shear. Clear? कुछ लिखते हैं सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर. आप बस ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर? यू कैन ड्रॉ डायग्राम, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्चुअली सर मुझे कुछ पॉइंट्स इसके मिस हो गए तभी. कौन सा पॉइंट मिस हुआ, बात बताओ. प्लीज और एक बार आपसे बताओ. कौन सा वाला मिस हुआ बताओ. पहला वाला पार्ट मैंने देखा कि उसमें यूडीएल लोड है और कंसंट्रेटेड यूडीएल हमारा लोड है, और जब हमारा लोड लग रहा है d/2 पे, एंड उस टाइम पे क्या सर हमारा हो रहा है? अगर कंसंट्रेटेड लोड है और आपके पास लोड जो है वो बिटवीन d/2 पे है, देन द क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट द फेस ऑफ द स्पोर्ट. ठीक है जी सर. दिस विल बी द क्रिटिकल सेक्शन. अगर आप चाहते हो कि आपके पास कंसंट्रेटेड लोड हो एंड कंसंट्रेटेड लोड इज एट डिस्टेंस मोर देन d/2, फिर आपके पास क्रिटिकल सेक्शन किस पे होगा, स्मॉल d पे होगा. ठीक है, तो ये केसेस है. फाइन सर. विच वन उवैस, कौन सा पूछ रहे हो, 2D किस केस की बात कर रहे हो आप? फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस. d/2d, सॉरी d/2 नहीं 2d. अगर मैंने d/2 कहा तो मैंने गलत कहा, इट इज 2d. ठीक है, so this was for punching shear. So this was for one way shear. Coming to second, if we have punching shear or two way shear. In case of two way shear, example we have footing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक फुटिंग है. ओके, और ऊपर से आपके पास यहाँ पर एक कॉलम है. इस कॉलम के अंदर जब आपके पास फुटिंग होगी, सो ऑब्वियसली देयर विल बी पंचिंग. सो पंचिंग के अंदर आपके पास जो क्रिटिकल सेक्शन बनेगा, दैट विल बी लाइक दिस. पेरिफेरल आपके पास होगा ये, इस तरीके से बनेगा. एंड दिस क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल एक अपने 2D व्यू में ड्रॉ करूं, तो दिस इज माय फुटिंग and this is my column. ठीक है, then critical section will be at distance d/2 from the face of column all around the column. ठीक है, कॉलम के चारों तरफ आपके पास क्रिटिकल सेक्शन जो होगा, that will be at distance d/2. Punching will be like this. ठीक है, punching will be like this. This is basically critical section in case of punching. d/2 Vikas, not d. ठीक है, d/2 in case of
two-way shear, critical section will be at d by 2. डी क्या है? डी पीछे लिखवा था मैंने, डी इज इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ आपके पास डी है, ठीक है. यहां पर भी आपके पास डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग बेस, ठीक है. Clear guys? So these are the critical sections for punching as well as one-way shear. Is it clear to all? Yes रघुवीर बोलिए. सर जब हम क्रिटिकल डेप्थ निकालते हैं बीम की, उसका कवर माइनस कर देते हैं. जब फाउंडेशन कैसे करते हैं? फाउंडेशन की, फाउंडेशन में भी कवर माइनस करना आपको नीचे से. और कॉलम की, कॉलम में इफेक्टिव डेप्थ का कंसेप्ट ही नहीं होता. इफेक्टिव डेप्थ विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ बीम्स एंड द स्लैब्स. ठीक है, चलिए आगे. ओके, अब हम देखेंगे शियर रिइंफोर्समेंट का. नाउ वी विल सी बेसिकली शियर रिइंफोर्समेंट. कल हमने यहाँ पर तीन चीजें हमने डिस्कस की थी. सबसे पहले आपने डिस्कस किया था टाउ वी, दैट इज वी यू divided by BD, that is nominal shear stresses that are inducing in case of beams or in case of the slabs. ठीक है, और ये आपको टाउ वी जो कैलकुलेट करना है, इसको आपको कैलकुलेट कहाँ पर करना है? दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑलवेज एट क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर आपको अपना टाउ वी की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लेनी है. टाउ वी निकालने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? आप टाउ सी निकालते थे. दैट इज फंक्शन ऑफ टू थिंग्स. First one is the grade of concrete. Second one is percentage of steel provided. कि आप कितना परसेंटेज स्टील दे रहे हो, इसके बेसिस पे आपके पास आता था टाउ सी. अब यहां से दो चीजें निकल के आती थी. वी हैव नाउ टू थिंग्स. इसमें सबसे पहला केस हमारे पास क्या है? केस नंबर 1, कि अगर मेरे पास टाउ वी इज मोर देन टाउ सी. टाउ वी का टाउ सी से ज्यादा होना, इट मींस दैट शियर स्ट्रेसेस व्हिच आर इंड्यूसिंग इज आर बेसिकली मोर देन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. शियर स्ट्रेसेस जो इंड्यूस हो रहे हैं वो आपके पास शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा है. इट मींस दैट वो जो आपके पास एक्स्ट्रा पोर्शन आएगा शियर का, दैट हैज टू बी रेजिस्टेड बाय शियर रिइंफोर्समेंट. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? शियर स्ट्रेसेस आर मोर देन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. तो वो जो एक्स्ट्रा जो है उसको आपने अब किससे रेजिस्ट करना है? बाय शियर रिइंफोर्समेंट. तो आपके पास यहां पर शियर रिइंफोर्समेंट को आपको डिजाइन करना ही पड़ता है. और शियर रिइंफोर्समेंट को आपको डिजाइन किसके लिए करना है? एक्स्ट्रा शियर के लिए. दैट इज VUS. VUS इज एक्स्ट्रा शियर. ठीक है, अब VUS क्या है? VUS आपके पास क्या है? कुछ तो आपके पास शियर जो था अप्लाइड शियर था. दिस वाज अप्लाइड शियर. This was applied shear. ठीक है, माइनस shear resisted by concrete. कुछ आपके पास shear concrete ने भी रेजिस्ट कर लिया. That is tau c BD. This will be the shear resisted by concrete. अगर आप VU को elaborate करें, it will be your tau v BD minus tau c BD. So we have tau v minus tau c BD. This will be the shear force for which we need to design shear reinforcement. आपको shear reinforcement इस shear के लिए डिजाइन करना है, जो मैंने आखिरी में लिखा. ठीक है, ये shear has to be designed for this extra shear. समझ आया गाइस? Yes, is it clear? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें. कर दो ये. हाँ जी, सर एक बार दोबारा बताना है. सबसे अच्छा डाउट ये होता है वैसे. रिपीट. टाउ वी अगर आपके पास टाउ सी से ज्यादा है, इफ टाउ वी इज मोर देन टाउ सी, इट मींस दैट शियर स्ट्रेसेस जो इंड्यूस हो रहे हैं वो ज्यादा है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज टाउ सी. हमने कल निकालना सीखा है टाउ वी कैसे निकालते हैं एंड टाउ सी कैसे निकालते हैं. टाउ सी इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. अगर टाउ भी ज्यादा, इट मींस दैट शियर स्ट्रेसेस आर मोर. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? जो एक्स्ट्रा शियर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू गो विद शियर रिइंफोर्समेंट.
अब shear reinforcement आपने कहते डिजाइन करनी है VUS के लिए. VUS means extra shear for which I need to go with shear reinforcement. कुछ तो हमारे पास applied shear था, that was VU. VU was a shear due to given load, that was applied shear. और माइनस अगर हम कर देंगे, that is tau c BD, which will be the shear resisted by concrete. shear जो कंक्रीट रेजिस्ट करेगा that will be tau c BD. तो अगर आप अप्लाइड शेयर में से शेयर रेजिस्टेड बाय अपना कहते हैं कंक्रीट को माइनस कर दोगे, यू विल गेट दैट वैल्यू ऑफ शेयर फॉर व्हिच आई नीड टू डिजाइन शेयर रिइंफोर्समेंट. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक्स्ट्रा शेयर जो मेरे पास अपने पास अप्लाइड शेयर है, फॉर एग्जांपल दैट वाज 10 किलो न्यूटन. ठीक है. लेकिन कंक्रीट की जो कैपेसिटी है वो आपके पास 7 किलो न्यूटन की है. कंक्रीट 7 किलो न्यूटन का शेयर अपने अंदर या खुद से वो हैंडल कर सकता है. तो बचा कितना? 3 किलो न्यूटन. इस एक्स्ट्रा के लिए आपको शेयर रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा. इस एक्स्ट्रा के लिए आपको शेयर रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा. ठीक है. ये क्या है? दिस इज योर VU अप्लाइड शेयर. ये क्या है? शेयर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट, दैट इज tau c BD. Tau c is basically shear strength and BD is the shearing area. So if you multiply shear strength with shearing area, you will get basically shear force. So this 7 kilonewton will be resisted by concrete. For example, I'm taking this. So extra shear will be 3 kilonewton, which has to be resisted by shear reinforcement. अब समझ में आया guys? Clear? Yes sir. Yes sir. Clear. ठीक है. तो ये तो हो गया जब आपके पास shear reinforcement देना पड़ रहा है और जब मेरे पास नॉमिनल शेयर जो है that is more than shear strength of concrete. This was case number 1. केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 में क्या है? चलो आप पहले केस नंबर 1 हम इसको पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है. जिसमें मेरे को अपना शेयर रिइंफोर्समेंट देना था. अब जो आपको शेयर रिइंफोर्समेंट देना है, शेयर रिइंफोर्समेंट देने के आपके पास 3 तरीके हैं. शेयर रिइंफोर्समेंट देने के हमारे पास 3 तरीके. सबसे पहला तरीका वर्टिकल stirrups. First one is vertical stirrups. Second one is inclined stirrups. And third one is bent up bar. Third one is bent up bars. तो आपके पास ये तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप लोग शेयर रिइंफोर्समेंट दे सकते हो. वर्टिकल स्टिरअप एक एक करके इनको हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. वर्टिकल स्टिरअप की बात करें, फॉर एग्जांपल योर बीम इज लाइक दिस. दिस इज योर बीम एंड योर सपोर्ट इज लाइक दिस. एक मिनट. दिस इज द सपोर्ट. ठीक है. ये हमारे पास ऊपर वाली एंकर बार, नीचे वाली मेन रिइंफोर्समेंट. शेयर रिइंफोर्समेंट आप ज्यादा किधर दोगे? स्पोर्ट्स के ऊपर या फिर अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स? शेयर रिइंफोर्समेंट ज्यादा कहां पर होगा? स्पोर्ट के ऊपर या फिर अवे फ्रॉम स्पोर्ट? सपोर्ट के पास होगा. Supports. Because shear force is maximum near sport. ठीक है. तो आपके पास इन केस ऑफ वर्टिकल इस तरीके से आपके पास शेयर रिइंफोर्समेंट होगी. दिस आर बेसिकली वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट. ठीक है. स्पोर्ट के पास इनकी स्पेसिंग कम होती है. जनरली आप जब स्पोर्ट से दूर चले जाते हो, स्पेसिंग आप इंक्रीज कर देते हो. क्लियर? तो ये आपके पास है वर्टिकल शेयर. अब जब वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट की बात की जाए, यहां पर एक चीज आती है कि आपको स्पेसिंग निकालनी पड़ती है. SV will be the spacing. This is SV. Spacing. स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला जो होगा that is 0.87 FY ASV D, D is effective depth, divided by VUS. VUS is extra shear which has to be resisted. Extra shear which has to be resisted. तो आप स्पेसिंग निकालेंगे 0.87 FY ASVD divided by
tau v minus tau c bd. So this will be the formula to find the spacing between shear reinforcement and vertical shear reinforcement. इसमें अब d क्या है? effective depth. This will be your d, effective depth. ठीक है. Fy आपको पता है, yield strength. अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान से रखना, shear reinforcement के अंदर yield strength की वैल्यू कभी भी 400 से ज्यादा नहीं हो सकती, 415 से. कभी भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन उठा लो किसी भी बुक का, किसी भी बुक के अंदर आपके पास 500 का यील्डिंग नहीं दिया होता. मैक्सिमम शेयर इज बेसिकली अप टू 415. इसकी पीछे एक रीजन है, वो ये रीजन यही है कि अगर आप 500 का दे दोगे तो आपके पास शेयर यील्ड ही नहीं करेगा, अनइकोनॉमिकल पड़ जाएगा. देयर इज नो नीड टू गो विद दैट. ठीक है ना. ओके, तो 415 आपके पास मैक्सिमम होता है. टाउ वी टाउ सी आपको पता है, बी इज अ विड्थ. एएसवी क्या है? एएसवी इज एरिया ऑफ सिंगल शेयर रीइंफोर्समेंट. जनरली आपके पास जो shear reinforcement होगा, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करूं, इफ दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, if this is a cross section and here we have this will be the main reinforcement. Just give me 1 minute. Yeah, this will be your shear reinforcement. This one. Okay. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक हुक होता है और हुक हमेशा ही कंप्रेशन जोन में होता है. ठीक है, 135 डिग्री के एंगल पे हुक आप लेके चलते हो. तो दिस इज योर शेयर. जनरली इन केस ऑफ बीम्स वी गो विद टू लेग्स. टू लेग, दो लेग है इसकी, एक लेग ये लेग नंबर 1, दिस इज लेग नंबर 2. टू लेग वर्टिकल स्टिरअप्स. तो अगर आपको इसका एएसवी निकालना हो तो आपके पास सिंगल लेग का डायमीटर या सिंगल लेग का एरिया जो बनेगा, दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, व्हाटएवर डाया इज गिवन ऑफ स्टिरअप, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना. तो दिस विल बी एएसवी. जनरली आप 2 लेग ही देते हो, वैसे तो कहते हैं 3 लेग भी हो सकते हैं, 4 लेग भी हो सकते हैं, अप टू 8 लेग्स यू कैन गो. बट इन केस ऑफ कहते हैं बीम उतनी जगह नहीं होती, बीम में 2 लेग सफिशिएंट है. इन केस ऑफ फुटिंग्स यू कैन गो अप टू 8 लेग्स आल्सो. ठीक है, तो इन केस ऑफ बीम्स 2 लेग्स ही सफिशिएंट है, 3 लेग की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो एएस भी निकल जाएगा. जितनी लेग्स हैं जनरली आपको 2 लेग्स ही होती हैं, आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हो, और डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट आप जो भी यहाँ पर दे रहे हो. दिस विल बी द फॉर्मूला व्हिच कैन बी यूज्ड टू फाइंड स्पेसिंग बिटवीन द रीइंफोर्समेंट. सर जो ये स्पेसिंग है जो ये पूरी कांस्टेंट रहती है सर इसमें, इस केस में? देखो, मैंने अभी बोला आपको कि आप जिस तरह से दूर जाओगे तो आपके पास शेयर फोर्स रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, उसकी स्पेसिंग को आप कम कर सकते हो. जिस तरह से आप यहाँ पर स्पोर्ट के पास तो आपकी स्पेसिंग ज्यादा है सर. उल्टा नहीं होगा? मूव अवे कैसे सेंटर पे ज्यादा मतलब होगा? हाँ जी सर. आप क्या उल्टा कैसे कह रहे हो? नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर कि अगर हमारे पास शेयर फोर्स ज्यादा है तो स्पेसिंग ज्यादा मतलब कम नहीं होगी सर? मतलब वहां पे अगर ज्यादा शेयर फोर्स हो रही है. कम बोला ना मैंने, उल्टा बोल दिया. स्पेसिंग विल बी लेस नियर स्पोर्ट. हाँ ठीक है सर. एंड मोर अवे फ्रॉम स्पोर्ट. कांस्टेंट ऐसा हो जरूरी नहीं, आप कांस्टेंट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रखने का फायदा नहीं है. बिकॉज जब आप लोग सेंटर के पास जाओगे, सेंटर के पास हमारे पास शेयर फोर्स कम है, तो आप स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हो. लेसर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड एट सेंटर. ठीक है, तो हम जो ये स्पेसिंग फाइंड आउट कर रहे हैं सर, ये वाली क्या है फिर? ये स्पोर्ट के ऊपर. बिकॉज आप लोग ये जो अपना शेयर फोर्स निकालते हो, शेयर फोर्स की हेल्प से आप लोग यहाँ पर टाउ वी निकालते हो, दैट इज वी यू बाय बी डी. ये शेयर फोर्स किस आप सेक्शन पे निकालते हो, इसको आप निकाल रहे हो कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर. ठीक है ना, गॉट इट. स्पोर्ट के पास की स्पेसिंग है.
दूर जाओगे तो क्या होगा, जनरली जब आपके पास टाउ वी की वैल्यू जब आपके पास कम हो जाएगी टाउ सी से, जैसे आप दूर जाते रहोगे टाउ वी की वैल्यू आपके पास टाउ सी से कम हो जाएगी, तो वहां पर shear reinforcement रिक्वायर्ड नहीं होती. तो in that very particular case we can go with nominal or minimum shear reinforcement. I will explain later on that. Nominal shear reinforcement, जब आपको shear reinforcement रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप स्पोर्ट से दूर चले गए, स्पोर्ट से दूर जाने पे shear force कम हो गया, nominal shear stresses भी कम हो गए. Nominal shear stress अगर आपके टाउ सी से नीचे गिर जाएंगे तो in that very particular case you can go with nominal or minimum shear reinforcement. ठीक है, तो उसकी स्पेसिंग जनरली ज्यादा होती है. एक्चुअली आपने इससे पहले कहा कि हम स्पोर्ट्स पे स्पेसिंग कम देते हो, फिर आपने कहा कि ज्यादा देते हो, तो उसमें थोड़ा स्पोर्ट्स confusion पे स्पेसिंग नहीं, ऊपर डायग्राम पे देखिए, स्पोर्ट्स के पास स्पेसिंग कम है, ऊपर लिख दिया मैंने लेस नियर स्पोर्ट, स्पोर्ट्स पे जनरेट है ना, बिकॉज shear will be maximum near sport. बेंडिंग मोमेंट वहां पर आपको shear reinforcement ज्यादा रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई स्पेसिंग विल बी लेस. एंड जिस तरह से आप दूर जाते जाओगे स्पोर्ट्स से, shear फोर्स कम होता रहेगा, shear reinforcement की रिक्वायरमेंट भी कम होती रहेगी और आपके पास स्पेसिंग है वो ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, ठीक है सर. यस गाइस, किसी को डाउट तो नहीं? चाहे मैंने उल्टा बोल दिया होगा जल्दी में. क्लियर सर, क्लियर, थैंक यू. क्लियर, ओके. अब यहां पर आपने जो अपनी स्पेसिंग कैलकुलेट की है इन केस ऑफ वर्टिकल स्टिरअप, एक तो आपने अपनी स्पेसिंग कैलकुलेट की है, दैट इज एसवी कैलकुलेटेड. ठीक है सर, एएसवी क्या है हमारा यहाँ पे? हाँ जी, एएसवी क्या है हमारा यहाँ पे? स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट. तो एसवी क्या है सर फिर? एसवी पूछ रहे हो ना? एएसवी एएसपी एरिया ही लिखा है ना पीछे, ये देखो आपके पास एरिया. यार स्पोर्ट पे ज्यादा क्यों होता है विजय? बिकॉज स्पोर्ट पे आपके पास रिएक्शन है, स्पोर्ट पे रिएक्शन है, तो ये तो आपने बीएमडी में किया होगा ना, ऐसे बीएमडी के अंदर. इन केस ऑफ यूडियल shear force डायग्राम विल बी लाइक दिस. ठीक है ना, तो आपके पास जो shear की वैल्यू है दैट विल बी मैक्सिमम नियर द स्पोर्ट सेंटर पे ज्यादा तक वो कहते हैं जीरो हो जाती है. ठीक है ना, दैट्स व्हाई जनरली shear इज मैक्सिमम एट स्पोर्ट. ओके, अब गाइस देखना, आपने आपने अपनी एसबी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, एक आपके पास क्या है 300 mm, एक है 0.75 टाइम्स ऑफ डी, और एक आप निकालोगे एसबी नॉमिनल. एसबी नॉमिनल इज बेसिकली मैक्सिमम स्पेसिंग. मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं एसबी नॉमिनल क्या है. इन तीनों में से आपके पास जो भी मिनिमम होगा, तीनों नहीं चारों में से, इन चारों में से आपके पास जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी द स्पेसिंग ऑफ योर वर्टिकल रिइंफोर्समेंट. मिनिमम जो होगा आपके पास दैट विल बी स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट. एक तो आपने एचवी कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, एक किए 300 mm, ये फिक्स किया हुआ आईएस कोड ने. एक 0.75 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, एक होता है एसवी नॉमिनल. एसवी नॉमिनल एक वो रीइंफोर्समेंट होती है, वो shear reinforcement है जहां पर मेरे को shear reinforcement रिक्वायर्ड नहीं है, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो shear देना ही होता है. उसकी जो स्पेसिंग होती है दैट इज एसवी नॉमिनल. उसका भी एक फॉर्मूला है, आई विल एक्सप्लेन दैट फॉर्मूला लेटर ऑन. अभी समझ लो एसवी नॉमिनल क्या. दैट विल बी मिनिमम shear reinforcement एंड मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement दैट कैन बी यूज्ड. तो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा आपको वो चूज करना है स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरअप के लिए. ठीक है, is that clear? क्लियर सर. Page number 73. Come to page number 73. Page number 73. आपको वहां मिल जाएगा for vertical stirrups. For vertical stirrups we have formula 0.87. For vertical stirrup we have formula 0.87 FY ASVD divided by SV. ठीक है, ये उसने फॉर्मूला आपको VUS का दिया है, आप VUS को नीचे ले आओ तो आपको अपनी स्पेसिंग का फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है,
क्लियर? वर्टिकल स्टिरअप में डाउट किसी को? नो सर। चलो, after discussing vertical stirrup, next that we need to cover is your inclined stirrup. Next we have is inclined stirrup. विकास ये लिखा सामने फॉर्मूला ASV का, ये देखो, ठीक है? Now inclined stirrup. Here which will be inclined like this. Those are inclined stirrups. ठीक है? इनके बीच में एंगल होगा अल्फा, ठीक है? ये तो निकालना पड़ेगा ना सर, बट थोड़ी देंगे हमें। इनिशियली आपको बार पहले आपको एज्यूम करना पड़ता है विकास, क्वेश्चन के अंदर हमेशा आप लोग बार एज्यूम ही करते हो कि एज्यूमिंग 8 mm डाया बार, 10 mm डाया बार, फिर आप वहां से उसकी स्पेसिंग निकालते हो, ठीक है? तो वी हैव अल्फा। अब यहाँ पर आपको स्पेसिंग का फॉर्मूला निकालना हो, दैट इज 0.87 FY ASVD tau V minus tau C BD sin alpha plus cos alpha. This will be the formula for inclined stirrup. Okay, this will be the formula for inclined stirrup. ठीक है? और इंक्लाइन स्टिरअप में अगर आपको स्पेसिंग देखनी हो कि मुझे कौन सी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, एक तो आप SB कैलकुलेट करके लेके आते हो, एक 300 mm, एक इफेक्टिव डेप्थ और एक SV नॉमिनल। इनमें से जो मिनिमम रहेगी दैट विल बी द स्पेसिंग, ठीक है? वो आपके पास निकल जाएगी स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। ठीक है? दिस इज योर इंक्लाइंड स्टिरअप। नेक्स्ट वी हैव इज बेंट अप बार। ये गाइस चलें आगे। नेक्स्ट वी हैव इज ASV किसका एरिया है हमारा? ASV shear reinforcement का एरिया, ये लिखा सामने देखो ना, ये देखो बीच में, ठीक है बैद? ओके सर। शेयर रिइंफोर्समेंट है, शेयर रिइंफोर्समेंट का आपको डायमीटर दिया होगा, उससे आप एक लेग की एरिया निकाल सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया। जितनी आपको लेग्स दी हैं, जनरली आपको 2 लेग्स ही आपको लेनी होती है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर 2 लेग्स। हमें अज्यूम करना पड़ता है हर किसी में। हाँ, इन केस ऑफ द बीम्स आप 2 लेग्स ही लेके चलते हो, ठीक है? सर वो तो ये तो इसको क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। ASV जो निकाला हमने वो तो सेक्शन का एरिया होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी।
क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाए पूरी लेग का एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, शियर रिइंफोर्समेंट के क्रॉस सेक्शन के एरिया। ठीक है, इस तरह से अब ऊपर से उसको काटोगे तो आपको जो सर्कल दो नजर आएंगे। ये एरिया आपके पास एएसबी है, 2 टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज बेंट अप बार। बेंट अप बार में क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज योर बीम, ठीक है, एंड दिस इज अ सपोर्ट। जनरली क्या होता है, जब आप लोग सपोर्ट के पास आते हो तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स? स्पोर्ट्स के पास बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, आप जिस तरह से अपने स्पोर्ट के पास जाते जा रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, एज वी अप्रोचेस द स्पोर्ट बेंडिंग मोमेंट रिड्यूसेस। अब यहाँ पर क्या है कि आप नीचे जो है ये दीज आर योर मेन रिइंफोर्समेंट, मेन टेंशन रिइंफोर्समेंट। टेंशन रिइंफोर्समेंट का आप जो अपना डिजाइन करते हो दैट इज जनरली फॉर बेंडिंग मोमेंट, इसको आप बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हो। ठीक है, बट जिस तरह से आप लोग स्पोर्ट के पास जा रहे हो तो आपकी बेंडिंग मूवमेंट जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। अगर बेंडिंग मूवमेंट रिड्यूस होता जा रहा है इट मींस दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट आल्सो रिड्यूसेस, लेकिन वहां पर शियर की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या है, नियर अ स्पोर्ट लेस है, लेकिन शियर फोर्स क्या है, मोर है। तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा मेन रिइंफोर्समेंट है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उसको आप यहां से नीचे से उठा के ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, और जनरली एंगल जो होगा दैट जनरल एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, मान लो कि आपके पास यहां पर 4 मेन बार्स थी, जस्ट मान लो कि आपके पास 4 मेन बार्स थी, लेकिन स्पोर्ट के पास आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मिनिमम 2 मेन बार्स तो होती है, मिनिमम 2 बार तो रहती हैं, बाकी की जो 2 थी उसको आप ऊपर को ले गए, उसको आप ऊपर को ले गए। और ये जो आप जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे थे, ये जो बीच का जोन, जो ये वाला जोन था, बीच वाला जोन, यहां पर उसने शियर को रेजिस्ट कर लिया, इस वाले जोन के अंदर उसने शियर को रेजिस्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज योर शियर रेजिस्टेड, शियर रेजिस्टेड बाय बेंट अप। ये इसको आप बेंट अप कहते हैं, ये ऊपर लेके गए आप लोग। ठीक है, दिस विल बी शियर रेजिस्टेड बाय बेंट अप, क्योंकि आपको मेन रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आप उसको ऊपर ले गए बाय मेकिंग यूज ऑफ बेंट अप। तो वो जब वो बेंट अप ऊपर गया तो उसने अपने साथ में शेयर को रेजिस्ट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि वो कितना शेयर रेजिस्ट करेगा, कि वो कितना शेयर रेजिस्ट करेगा। तो वी यू एस बेंट अप, बी यू बेंट अप ने कितना शेयर रेजिस्ट किया। पहली बात तो आपने कितनी बार बेंट अप की, एन नंबर ऑफ बार बेंट अप 2 की है, 3 की है, 0.87 FY, 0.87 FY ASB इंटू साइन अल्फा, ASB इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसमें जो ASB है, ASB इज एरिया ऑफ सिंगल बेंट अप। सिंगल बेंट अप आप मतलब सिंगल बेंट अप बार का एरिया कितना है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव ASB, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना विद n, n इज नंबर ऑफ बार्स व्हिच हैज बीन बेंट अप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा कितना शेयर बेंट अप जो है वो रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है, शेयर रेजिस्टेड बाय बेंट अप। क्लियर, इन केस ऑफ स्लैब्स एंड बीम्स विजय दोनों में होता है। बेंट अप बार्स का कंसेप्ट स्लैब में तो बहुत एक कॉमन सा कंसेप्ट है। ठीक है, स्लैब्स और बीम दोनों में बेंट अप आप कर देते हो। क्लियर गाइस, लेकिन इसका हाँ जी बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये हम जो बेंड कर रहे हैं सर, कुछ एक डिस्टेंस वगैरह होता है इसका फिक्स, या ऐसे ही मतलब क्या? L/7 इफेक्टिव स्पैन जो आपके पास होगा
by 7. That will be the distance at which bent up is generally done. ठीक है. क्लियर. सो अब जब आप बेंट अप करते हो, यस सर, एक प्लीज एक बार फिर से बता दो. देखो बेंट अप बार क्या है कि आप जब अपने स्पोर्ट के पास जा रहे हो, स्पोर्ट के पास जाते जाते हमको मेन इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कम हो गई. मेन इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कम होने के कारण वो जो एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट है आप उसको ऐसे ऊपर लेके जा सकते हो. ठीक है. जैसे आप मेन इन्फोर्समेंट के पास अपनी स्पोर्ट के पास पहुंचे, स्पोर्ट के पास मेन इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज बेंडिंग मोमेंट इज लेस. तो वो जो एक्स्ट्रा मेन इन्फोर्समेंट थी आप उसको उठा के ऊपर ले गए. जब आप उसको ऊपर लेके गए तो जब वो ऊपर जा रहा था तो वहां पर उसने शेयर को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, सेम एज इंक्लाइन स्टीरप्स. इंक्लाइन भी ऐसी थी ना, आप इंक्लाइन ऊपर लेके जा रहे थे, तो सेम उसी तरीके से आपके पास ये मेन इन्फोर्समेंट है, ये भी शेयर को रेजिस्ट करना शुरू कर देगी. और इसने शेयर कितना रेजिस्ट किया, दैट इज n टाइम्स 0.87 f by ASB into sin alpha, where alpha is angle of inclination, n is number of bars जो आपके पास बेंड हो चुके हैं, and fy is yield strength. ठीक है. तो ठीक है उबैस. राइट. सो अब इसमें एक चीज ध्यान समझना, बेंट अप बार्स आपके पास कटेलमेंट का कंसेप्ट होता है. विजय आपने उससे कहते कटेल कर दिया, वो आगे अब नहीं जा रहा, उसको आप बेंट अप करके ऊपर लेके नहीं गए. कटेलमेंट एंड बेंट अप आर डिफरेंट कंसेप्ट. कटेलमेंट मतलब आप उसको कहते आपने काट दिया, ऊपर लेके आप नहीं गए, दैट इज बेसिकली कटेलमेंट. ठीक है. L/7 साबा. ओके. सो अब आप देखो effective span of the beam. Okay. Effective span of beam. ठीक है. यस रघुबीर बोलो. सर जो L/7 इसकी लेंथ फिक्स होती है, कम ज्यादा भी होती है? हाँ जी. सर जो L/7 नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप L/7 पे रखना, बट जनरली L/7 आपके पास होता है. ऐसे. हाँ जी बोलो. उसके प्रोजेक्शन है, इसमें एक लेंथ होती है 0.3L और सेकंड होती है 0.5L, जो अल्टरनेट लेंथ से प्रोवाइड करते हैं. 0.3L और 0.15L 12.1 क्या है ये? रोई CS टिप स्लैब्स में. नहीं, अगर आप 0.15L पे गए तो आप बहुत ही पास चले गए स्पोर्ट के. सर अल्टरनेटिव कराते हुए प्रोवाइड ऐसे होता है वो डिजाइन आप होता है. अपने स्लैब में चले गए अल्टरनेट्स के अंदर. इन केस ऑफ बीम आप सबके सब ऊपर ले जाते हो. स्लैब में होता है कि आप एक छोड़ के दूसरी करते हो. बीम्स के केस में जो आपको नीचे 2 रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 नीचे होनी चाहिए, बाकी के ऊपर आप उठा के ले जा सकते हो. अब देखो जब भी आप बेंट अप बार का डिजाइन करते हो, बेंट अप बार के अंदर क्या होता है कि एक चीज ध्यान में फिक्स रखिएगा आप लोग कि हमारे पास जो मैक्सिमम शियर बेंट अप बार रेजिस्ट कर सकता है, that should never more than 50% of total shear which has to be resisted. ये चीज ध्यान से समझना. जितना आपको टोटल आपको अगर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि बेंट अप बार आपको शेयर रेजिस्ट करना है, फॉर एग्जांपल टोटल शेयर आपको रेजिस्ट करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया था 3 का. ठीक है. फॉर एग्जांपल 3 किलो न्यूटन टोटल शेयर विच हैज टू बी रेजिस्टेड. टोटल शेयर से जो बेंट अप बार रेजिस्ट करेगा दैट शुड बी ओनली 1.5 किलो न्यूटन. 50% रेजिस्ट करना. इवन दो वो ज्यादा आपके पास रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन आप ये मान के चलोगे कि मेरे पास सिर्फ 50% या उससे कम ही रेजिस्ट करेगा. 50% से ज्यादा रेजिस्ट करेगा ही नहीं. अगर वो कर सकता है तो आप उस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को इग्नोर कर दोगे. तो जो बचा 50%, वो जो बाकी का 50% बचा, वो बाकी का 50% या तो आप इंक्लाइन स्टीरअप दोगे या आप लोग अपनी वर्टिकल स्टीरअप दे दोगे. ठीक है. तो बेंट अप बार इकल्ले प्रोवाइड नहीं होते, उनके साथ आपको वर्टिकल स्टीरअप या फिर इंक्लाइन स्टीरअप देने पड़ते. ठीक है. और ये जो बाकी का 50% है वो ये रेजिस्ट करेंगे. क्लियर गाइस? बिकॉज एग्जैक्ट बिहेवियर
of bent up bar is still unknown, we can say. अभी तक आपको फिर एग्जैक्ट नहीं पता कि बेंट अप बार कितना रेजिस्ट करेगा, उसका एग्जैक्ट बिहेवियर क्या है, वो अभी भी एक मेथड ऑफ बेसिकली यू कैन से इट इज स्टिल मैटर ऑफ कंसर्न अंडर द रिसर्च. दैट्स व्हाई फॉर द सेफ्टी वी कैन से कि मैक्सिमम 50% ही बेंट अप रेजिस्ट करेंगे. बाकी के 50% जो होंगे वो आपके या तो वर्टिकल स्टिरअप या फिर आपके इंक्लाइन स्टिरअप ले लेंगे. ठीक है. The rest 50% will be either resisted by vertical stirrup or inclined stirrups. ठीक है. तो जब ये Which यूज is होता है, more inclined? हाँ जी बोलो. आंसर दे दो आप उसका पहले. देखो एक्चुअली के अंदर तो आपके पास जो इंक्लाइन स्टिरअप है दोज आर बेसिकली मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू वर्टिकल स्टिरअप, बिकॉज आपके पास जो कहते हैं क्रैक्स हैं वो इंक्लाइंड ही है. तो कहते हैं क्रैक्स को आपको अरेस्ट करने के लिए अगर इंक्लाइन स्टिरअप होंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है. बट द थिंग इज दैट इंक्लाइंड स्टिरअप जो है उनको कहते प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है. उस डिफिकल्टी को देखते हुए हम लोग अपनी नॉर्मल वर्टिकल स्टिरअप लेके ही चलते हैं. ठीक है. सर ये कॉम्बिनेशन में भी यूज होते हैं या सर सिंगल ही यूज होते हैं सर? कॉम्बिनेशन मतलब कैसे? मतलब जैसे सर आप जैसे बेंट अप बार की बात कर रहे हैं एक बीम में, सर वहां पे दूसरे स्टीयर भी यूज होंगे जो वर्टिकल वाले, मतलब अभी होता है तो ऐसा मैं सर? बोलकर हटा, मैं अभी आपको 50% बाकी का कौन रेजिस्ट करेगा? ऊपर देखो डायग्राम में मैंने सामने शो किया हाँ भी हुआ, बेंट अप के ऊपर मैंने सिर्फ वर्टिकल ड्रॉ किया. ठीक है सर. हाँ ठीक है. बेंट अप कभी भी आपने इकल्ले यूज नहीं करने, उनके साथ हमेशा आपके पास वर्टिकल या फिर इंक्लाइन सिर्फ आपको रखने. ठीक है. इट्स डायरेक्शन इज अल्टरनेट टू सपोर्ट, आई मींस ऑपोजिट टू शियर सर. देखो ऐसे होता है कि इफ दिस इज अ सेक्शन, if this is an element for example, लेफ्ट हैंड साइड पे शियर स्ट्रेस जो होगा दैट इज समवट लाइक दिस. ठीक है. ये आपने कल भी देखा था. तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बनते हैं टेंसाइल वो आपके पास ऐसे बनते हैं. इसके कारण जो आपके पास कहते क्रैक्स आते हैं वो कुछ ऐसे आएंगे. ठीक है. तो इन क्रैक्स को रोकने के लिए आप इनके यहाँ पर अपने शियर दोगे. ठीक है. क्लियर ना? So now next we have minimum shear reinforcement. So this was all with your case number we can say 1. Case number 2 में क्या बनेगा? Case number 2 में क्या बनेगा? In case number 2 what can we say? That your tau v is less than tau c. टाउ वी मतलब क्या आता है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस वो आपके पास अगर टाउ सी से कम है, इट मींस दैट कि हमको कोई शियर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है. कंक्रीट की ही इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वो जो आपके पास शियर इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू अप्लाइड लोड उसको वो रेजिस्ट कर सकता है. ठीक है. इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ से इट मींस दैट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज सफिशिएंट. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शियर इन्फोर्समेंट देनी नहीं, आपको फिर भी कुछ ना कुछ शियर इन्फोर्समेंट देनी ही पड़ती है. That shear reinforcement is termed as nominal or minimum shear reinforcement. Nominal or minimum shear reinforcement. फिर भी आपको इतनी देनी ही पड़ती है. अब क्वेश्चन आता है कि why? Anyone from you? Nominal या minimum shear reinforcement आपको देनी पड़ती है क्यों? Even though shear stress is less than shear strength of concrete. Still we are going with shear reinforcement. Why? Anyone from you? Avoid cracks तो आपके पास विकास क्यों आएंगे cracks? Which type of cracks you are talking about? क्या क्रैक ज्यादा हो जाए तो फ्यूचर में हो जाए, वो आप पहले आप सेफ्टी लेके चल चुके हो.
लिमिट स्टेट मेथड में आप ऑलरेडी सेफ्टी लेके चल चुके हो अपने फ्यूचर को देखते हुए, तभी आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई की है। वो नहीं जाएगा फ्यूचर में, एक्सीड नहीं करेगा। सो सडन फेलियर को बचाने के लिए। वेरी गुड। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग उसको? टू अवॉइड ब्रिटल फेलियर। हाँ सर। To avoid brittle failure, or we can say to enhance ductility. To enhance ductility, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा और भी होते हैं। अगर आप shear reinforcement दोगे ही नहीं तो आपके पास मेन reinforcement कैसे, आप होल्ड कैसे करोगे? ठीक है ना? yes, to hold reinforcement, to hold reinforcement in the place। अगर आप shear reinforcement नहीं दोगे तो आपके पास वो हिल जाएंगी जगह सब में। ठीक है। नेक्स्ट इज टू कन्फाइन कंक्रीट। यू नो दैट कि कंक्रीट को कन्फाइन करना बहुत जरूरी है। अगर शेयर इन्फोर्समेंट नहीं होगा तो आपके पास कंक्रीट की कन्फाइनमेंट नहीं आएगी। और अपने कंक्रीट को कन्फाइन करना इज वेरी वेरी एसेंशियल फ्रॉम फ्लेक्सुरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम शेयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। एंड टू रिड्यूस श्रिंकेज एंड टेम्परेचर क्रैक्स, बिकॉज आई वाज आस्किंग यू व्हिच टाइप ऑफ क्रैक्स। शेयर के कारण तो कहते क्रैक्स आएंगे ही नहीं, बिकॉज आपके पास नॉमिनल शेयर ही कम है। जो क्रैक्स आ सकते हैं वो आपके पास टेम्परेचर एंड द श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। उनको अवॉइड करने के लिए आप लोग इस नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस? अब नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला इज, ऊपर का फॉर्मूला सारा सेम है जो आपने पहले लिखा, 0.87 FY ASVD। नीचे आपके पास जो टाउ वी माइनस टाउ सी होता था, इसको आप टाउ वी माइनस टाउ सी पुट करते थे। इस टाउ वी माइनस टाउ सी को आपको 0.4 पुट कर देना। इवन दो ये हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो स्पेसिंग रिक्वायर्ड है ना। तो आप इस टाउ वी माइनस टाउ सी को फॉर्मूला में क्या पुट कर दोगे? 0.4 पुट कर दोगे। The formula is 0.87 FY ASV 0.4 BD. This will be minimum or nominal shear reinforcement spacing. Nominal shear reinforcement. कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। सर Yes. बीडी आएगा या सिर्फ बी आएगा? ऊपर भी बेसिक डी में जो नॉमिनल शेयर। अब ठीक है, ऊपर भी डी काटेंगे तो सीधा आपके पास कहते बी रह जाएगा। ठीक है, ये गाइस चले आगे। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 IS कोड, वहां मेंशन है मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, clear? It is mentioned that ASB divided by BSB that should be more than equal to 0.4.87 FY। यही फॉर्मूला है वो सारा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला IS कोड में भी मेंशन है। मिल गया? पेज नंबर 48 IS कोड, पेज नंबर 48, क्लॉज नंबर 26.5.1.6। ठीक है,
पेज नंबर 48। अब क्वेश्चन देखें इसके रिलेटेड। यस ओके, ये तो चैप्टर कर रहे हैं ना, क्वेश्चन निकालने को। यप, देखिए आप लोग, a T-beam having 230 mm width of web, 230 mm width of web, and 460 mm effective depth, is reinforced with five number of 16 mm dia bar as the tension reinforcement. The section is subjected to factored shear force. The section is subjected to factored shear force of 52.5 kilonewton. The section is subjected to factored shear force of 52.5 kilonewton. Check the shear stresses and design the shear stress reinforcement. Design shear stress reinforcement. Material used is M20. comma Fe 415 for main reinforcement. Fe 415 for main reinforcement. And use 6 mm dia mild steel, vertical stirrup reinforcement, and use 6 mm dia mild steel vertical shear reinforcement. अकीब क्या कह रहे हैं? टेंशन से 415 for the tension reinforcement and use 6 mm dia mild steel vertical shear reinforcement. ठीक है, थोड़ा सॉल्व। सबसे पहले देखो कि आपको shear इसमें रिक्वायर्ड है, shear reinforcement और नॉट।
सबसे पहले देखो कि आपको shear reinforcement रिक्वायर्ड भी है। Data given, we have a T-beam having width of web as 230 and effective depth as 460 millimeter. Reinforcement कितनी आपको दी हुई है? 5 bars of 16 mm dia. 5 bars of 16 mm dia, which continues for a distance greater than effective depth. छोड़ो उसको. Factored shear force is also given to you as 52.5 kilonewton. That is given to you. Factored shear force. ठीक है. M20 is grade of concrete. Fe 415 for tension reinforcement. That is for main reinforcement. And mild steel of dia 6 mm for shear reinforcement. So these things are given to you. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यू नीड टू बेसिकली डिटरमाइन दैट वेदर shear reinforcement is required or not. ठीक है, solution. Step number 1, tau v. Tau v is equal to vu divided by b web into depth. आपको मैंने पहले भी लिखवाया था, whenever we have flanged section, फ्लेंज सेक्शन में आपको वेब की विड्थ ही कंसीडर करनी है. टोटल आपको पास टी बीम की विड्थ नहीं लेनी. वी नीड टू कंसीडर विड्थ ऑफ द फ्लेंज, विड्थ ऑफ द वेब ओनली, फ्लेंज नहीं वेब. तो वीयू की वैल्यू 52.5 into 10 raised to power 3 newtons divided by width of web is 230, effective depth is 460. तो कितना आंसर आ रहा है इसका? That is 0.496. 496 Newton per mm square. This was step number 1. Is it clear to all? Guys, is it clear? Chalo. Step number 2. Here, strength of concrete. We know that it is function of two things. First one is the grade that is given to you as 20 Newton per mm square, and second one, it is on the basis of percentage of reinforcement provided. AST divided by width of web, effective depth into 100. तो AST कितना है? PT निकाल दो. 5 bars of 16 mm dia here, divided इसके by 4. Width of web is 230. Effective depth is 460 into 100. कितना आ रहा है PT? .95. ठीक है, 0.95%. Clear to all?
अब आपको टाउसी की वैल्यू निकालनी है। तो टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 ऑफ IS 456। नो डाउट आपको पेपर में कोड आउट नहीं होगा, पेपर में आपको टाउसी की वैल्यू सीधा दे सकता है, या फिर वो आपको दो रेंजेस दे देगा, उन दो रेंजेस के बीच में निकालना पड़ेगा। बट जनरली इतना आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको वो टाउसी की वैल्यू सीधा दे सकता है, ज्यादातर चांसेस इसी के। बट फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब आप देखो टेबल जो है वो आपके पास पीटी और यहाँ पर ग्रेड M20 दिया होगा। पीटी की वैल्यू जब आपके पास 0.75 थी, सो M20 के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव 0.56, एंड पीटी की वैल्यू जब आपके पास 1 दी हुई है एंड इट इज 0.62, तो आप 0.95 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हो टाउसी की। ये टाउसी की वैल्यू है फॉर ग्रेड M20। तो 0.95 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन। निकालिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.95 टाउसी? वेरी गुड, 0.608 न्यूटन पर mm स्क्वायर बाय लीनियर इंटरप्रिटेशन। सबको ये आता है करना ना लीनियर इंटरप्रिटेशन? दो वैल्यूज आपको दी हैं, उनके बीच में आपको एक और वैल्यू निकालनी है। इस गाइस आता सबको? ठीक है, तो आपके पास टाउसी निकल के आ गया। अब आपको एक चीज स्टेप नंबर 3, टाउसी मैक्स। टाउसी मैक्स की वैल्यू कितनी थी फॉर ग्रेड M20? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टाउसी मैक्स M20 के लिए? वेरी गुड, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो टाउ वी इज डेफिनेटली लेस देन टाउ सी मैक्स, दस ओके, कोई इशू नहीं है, डिजाइनिंग विल बी सेफ। स्टेप नंबर 4, check for shear reinforcement. Check for shear reinforcement. Now if you want to apply check for shear reinforcement, that whether shear reinforcement is required or not, we know that tau v is coming out to be 0.496 megapascals or Newton per mm square, and tau c is coming out to be 0.608। तो बताओ shear reinforcement की डिजाइनिंग करने की जरूरत है? Do we need to go with design of shear reinforcement? No। तो इस केस में क्या आप shear reinforcement दोगे ही नहीं या कुछ दोगे? Tau is less than tau c. In this case, we will go with nominal or minimum shear reinforcement। नॉमिनल या फिर मिनिमम shear reinforcement हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, नॉमिनल और मिनिमम shear reinforcement की आपको स्पेसिंग का फॉर्मूला पता है, 0.87 FY ASV D डिवाइडेड बाय 0.4 BD। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना आप लोग, SV 0.87 FY की वैल्यू कितनी है? FY इज यस गाइस, FY कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपको? 250। 250, 415 पुट मत कर देना, वही गलती आपने कर दी। ठीक है साहब, 415 is for the tension reinforcement. It is clearly mentioned mild steel for shear reinforcement, तो 250। ASV कैसे पुट करोगे? ASV area of shear reinforcement, vertical shear reinforcement।
टू लेग्ड, दैट्स व्हाई 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डायमीटर ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट इज गिवन टू यू into effective depth 460 divided by 0.4 times of B, which is 230 into 460. This 460 will cut. So let me know what is SB now. कितना आ रहा है SB? Very good. 133.688 millimeter. This will be the nominal shear, minimum shear reinforcement. मतलब इतनी आपके पास होनी चाहिए. अब आपको स्पेसिंग देनी कितनी है? स्पेसिंग देनी कितनी है? स्पेसिंग शुड बी मिनिमम ऑफ 3 थिंग्स. एक तो आप SB जो आपने कैलकुलेट किया 133.688 which is approximately 130 millimeter. ठीक है. Then we have is अपना 300 and 0.7 times of effective depth. So 0.7 times of effective depth, which is 460. So we have 322 millimeter. इसमें से आपको सबसे मिनिमम वाली वैल्यू चूज करनी है and minimum one is 130. You can say provide two-legged 6 mm dia vertical stirrups at rate of 130 mm center to center throughout. Throughout क्यों? Because आपको नॉमिनल से नीचे तो कभी देना ही नहीं है ना, तो थ्रूआउट आप यही चलोगे. ठीक है. So this will be the designing of shear reinforcement. Yes, is it clear? Yes guys, clear हुआ क्वेश्चन? सर इसमें इन्होंने हमें फैक्टर्ड शियर फोर्स दी हुई है. अगर सिंपल शियर फोर्स दी होती तो आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है एग्जैक्टली. बिकॉज अगर सिंपल शियर फोर्स है दैट विल बी बेसिकली वर्किंग शियर फोर्स, तो आपको उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना. लेकिन यहाँ पर उसने आपको ऑलरेडी ही फैक्टर दे दिया था. ठीक है गाइस, सब कंफर्टेबल हो शेयर रिइंफोर्समेंट के डिजाइन में? ये गिनती के 3-4 इसमें बस स्टेप्स हैं, उनको करोगे तो हो जाएगा डिजाइन. हाँ जी. स्पोर्ट्स नहीं, यहाँ पे आपको पूरी लेंथ पे देना है. स्पोर्ट्स के पास आपको ज्यादा देना होता है एंड आपको बाकी जगह आपको थोड़ा कम देना होता है. लेकिन आपको ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज वी नो दैट टाउ भी तो हमारा क्या कम ही है ना टाउ सी से, तो पूरी जगह आपको नॉमिनली देना है थ्रू आउट द लेंथ. ठीक है. यहाँ आपको चेंज नहीं करने की जरूरत बिकॉज मिनिमम तो आपको देना ही है ना हर जगह पे. सेंटर में मान लो आपको शेयर रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम तो देना ही है, थ्रू आउट ही जाएगा. चलो यस गाइस, कंफर्टेबल ऑल, आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सर अगर तो टॉपी की वैल्यू ज्यादा होती तो हम मिनिमम देते ना, मैक्सिमम देते. हाँ उस पे हम आते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे आएंगे. अगर टॉप की वैल्यू ज्यादा हो जाती तो. चलो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए. अगर मैं VU को इंक्रीज करके 90 पे ले जाऊं, अब मैं VU को इंक्रीज करके 90 पे ले गया, अब सिचुएशन विल बी डिफरेंट. स्टेप नंबर 1 में पहले आपको टाउ भी निकालना पड़ता. फटाफट मुझे आंसर करके बताते रहिएगा. VU डिवाइडेड बाय BD कितना आ रहा है? Now VU has been increased to 90. Factor shear force has been increased to 90 kilonewton. So what will be the nominal shear strength? Nominal shear stress now. कितना आ रहा है? 0.85 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. टाउ सी की वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज
same and percentage of reinforcement is also same. So tau c will be same 0.608 Newton per mm square. अब देखिए इस क्वेश्चन में check for shear, check for shear reinforcement. Tau v is more than tau c, so whether shear reinforcement is required or not, in this case we need to design shear reinforcement. आपको अलग से shear reinforcement का डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइन shear reinforcement. ठीक है, अब डिजाइन करने के लिए आपकी मर्जी है, आप चाहे वर्टिकल दो या आप लोग अपने इंक्लाइन दो, बट जनरली अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आपको वर्टिकल ही देना रहता है. ठीक है, तो प्रोवाइड स्टेप नंबर 4, provide 6 mm dia, 2-legged vertical stirrups. ठीक है, 2-legged vertical stirrups. तो आपको यहां से स्पेसिंग निकाल लेनी है. 0.87 FY ASV D tau V minus tau C BD. सब कुछ आपके पास है. So let me know what is the value of SV now. कितना आ रहा है SV? Yes. $220.97 millimeter. This will be the shear required. ठीक है, ये आपके पास आ गया SV कैलकुलेटेड. अब इसके बाद स्टेप नंबर 5, अब आपको निकालना है SV कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल. बिकॉज आपको नॉमिनल तो देखना पड़ेगा ना कि अगर मैं मिनिमम देता हूं तो मिनिमम के लिए कितनी रिक्वायर्ड थी. मिनिमम के लिए मुझे फॉर्मूला पहले से पता है, हम इसको पहले निकाल भी चुके हैं. 0.87 FY ASV D 0.4 BD. 271 आ रहा तो दिस इज 270 आ रहा है, 271, तो अप्रोक्सीमेटली 270 हो गया. और यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा था? 133 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 130. तो अब आप देखो नॉमिनल रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग कम है एज कंपेयर टू स्पेसिंग रिक्वायर्ड. ठीक है ना, तो अगर आपके यहाँ पर स्पेसिंग की बात की जाए कि आपको स्पेसिंग देनी कौन सी है, तो आपको यहाँ पर 4 क्राइटेरिया देखने हैं. एक तो आपने SV कैलकुलेट किया विच इज अराउंड 270. ठीक है, एक आपने अपना क्या बोलते हैं नॉमिनल देखा, SV नॉमिनल विच इज 130. फिर एक 300 mm, फिर एक 0.75 टाइम्स ऑफ D. ये कितना आ रहा था? 322. इसमें से सबसे मिनिमम अभी भी यही है, SV nominal 130 mm. So the design will be same, that is provide 6 mm dia, 2-legged shear reinforcement at rate of 130 mm center to center. Clear? Is guys clear? सर इस केस में हम मिनिमम जो सपोर्ट देंगे और जो नॉमिनल देंगे वो सेंटर. मिनिमम नॉमिनल से सेम ही तो है. सॉरी सर, वो कैलकुलेटर कहीं पे भी नहीं देना आपने. अब कैलकुलेटर की तो आपके पास स्पेसिंग ज्यादा होगी ना. मिनिमम स्पेसिंग कैलकुलेटेड से भी बेसिकली मतलब कम है. मतलब कम से कम जो आप शेयर इन्फोर्समेंट दे रहे हो, कम से कम शेयर इन्फोर्समेंट दे रहे हो, उसकी स्पेसिंग 130 होनी चाहिए. तो 270 तो ज्यादा हो गया ना, तो वो तो आपको देना ही नहीं है.
ठीक है ना, ये भी थ्रू आउट ही रहेगा। यस, मतलब अगर आपके पास ये केस कुछ ऐसा होता, मान लो अगर आपके पास ये केस ऐसा होता कि एसबी कैलकुलेटेड निकल के आता 100 mm, मान लो, और आपके पास एसबी नॉमिनल होता 130 mm, फिर आप कहते हैं कि हाँ सर स्पोर्ट के पास 130 अपना 100 mm दोगे बिकॉज एसबी कैलकुलेटेड है, और जो सेंटर में जाके 130 कर दोगे, वो ज्यादा है। लेकिन आपको यहाँ पर तो ये आई 270 गया, 270 से कम तो आपको 130 ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है ना, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेसिंग हो ही 130 सकती है, उससे ज्यादा आपको कभी एक्सीड करनी नहीं है। ठीक है रघुवीर, ये भी कहते थ्रू आउट ही जाएगा। रघुवीर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अभी कंफ्यूजन है? ठीक है सर, मतलब कि सर अगर कैलकुलेटेड कम होती तो वो प्रोवाइड करते हैं ना? हाँ वो पॉइंट करते हैं, बट आपको हमेशा क्या होता है कि हमको अपनी स्पेसिंग कहते हैं कम करनी होती है, जितनी कम हो उतना अच्छा है। यहाँ पर कम से कम तो है ही 130। ठीक है ना, चलो अब इसका एक और देखते हैं पार्ट। इस सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 लिखिए। इफ इन अबव प्रॉब्लम, if in above problem two bars of 16 mm dia are bent up, if in above problem two bars of 16 mm dia are bent up, दो को आपने बेंट अप कर दिया एट 45 डिग्री एंगल, शियर फोर्स को आपने इंक्रीज कर दिया 120, फैक्टर्ड शियर फोर्स को आपने इंक्रीज कर दिया 120, फाइंड द स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, मैंने पहले भी बोला आपका बेंटअप बार कभी कभी भी इकल्ले प्रोवाइड नहीं करते, बेंटअप बार के साथ आपने हमेशा ही वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट देनी है इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट द बेंटअप बार। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहली बात स्टेप नंबर 1, आप निकालेंगे टाउ वी। टाउ वी इज वी यू डिवाइडेड बाई बी डी। कितना आ रहा है, अब आपके पास वी यू इंक्रीज हो चुका है, कितना आ रहा है आपके पास 1.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, टाउसी वो आपके पास फिक्स ही रहेगा बिकॉज द ग्रेड ऑफ सॉरी टाउसी विल नॉट चेंज। अब टाउसी आपका चेंज हो जाएगा, चेंज क्यों होगा, बिकॉज अब आपके पास 2 बार का आप बेंट अप कर चुके हो ना, तो नीचे अब कितने बार है, 3 बार है बस। ठीक है, तो एक तो आपके पास ग्रेड था 20 और परसेंटेज ऑफ स्टील विल बी नाउ डिफरेंट बिकॉज नाउ वी हैव ओनली 3 बार, 5 में से 2 आप ऊपर बेंट अप पे ले जा चुके हो, तो नीचे रह कितनी गई, सिर्फ 3 बार रहेगी, 3 बार्स ऑफ 16 mm dia square by 4 divided by b d into 100। तो बताओ कितना आ रहा है पीटी आपका, पीटी कितना आ रहा है, समझ आया ना, यहाँ पर पीटी बदल क्यों गया, किसी को यहाँ पर डाउट तो नहीं है, बिकॉज क्लियरली मेंशन कि 2 बार आपके बेंट अप हो चुके हैं, तो अगर 2 बार बेंट अप हो जाएंगी तो नीचे बचेंगी 3 बार। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील इंटेंशन, 0.57। ओके, तो टेबल को यूज करो, टेबल को यूज करके मुझे कहते बताओ टाउसी की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रॉम टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73। पॉइंट 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाज 0.48, 0.75 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाज 0.56। तो बताओ आपके पास कितनी आ रही है, सुप्रिया 0.38 तो आ ही नहीं सकती, 0.48 से 0.56 के बीच में आएगी, तो देखो टाउसी की वैल्यू कितनी आ रही है।
यस गाइस, कितनी आ रही है? हरी अप। पॉइंट 50, वेरी गुड। 0.502 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, क्या आपके पास नया टाउ आ जाएगा क्योंकि आपके पास रीइंफोर्समेंट का नंबर चेंज हो चुका है। स्टेप नंबर 3, tau v is more than tau c. It means that shear reinforcement has to be designed shear reinforcement. अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 4, shear resisted, कि आपको कितनी shear resist करनी है। shear which has to be resisted by shear reinforcement, कितनी shear reinforcement को resist करनी है, extra shear, that is tau v minus tau c into bd। यही आपके पास एक्स्ट्रा शेयर है जो आपको रेजिस्ट करनी है। ठीक है ना। सो टाउ वी की वैल्यू कितनी आपके पास है? 1.13। टाउ सी की वैल्यू कितनी आपके पास है? 0.5024, है ना, 0.5024 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू 230 इंटू 460। तो कितना आ गया ये? कितना शेयर आपको रेजिस्ट करना है बाय शेयर इन्फोर्समेंट? दैट इज 66400.08 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली रेजिस्ट करना है। अब आपके पास इसको रेजिस्ट करने के लिए यहां पर दो मैकेनिज्म्स हैं। एक तो आपको बेंटा बार क्वेश्चन में दे रखा है कि शेयर रेजिस्टेड बाय बेंटा बार, कि बेंटा बार कितना शेयर रेजिस्ट करता है। अब उसका मुझे फॉर्मूला पता है कि मैं कितने बार बेंट अप कर रहा हूं, n इंटू 0.87 fy ASV साइन अल्फा। यहां से निकल जाएगा कि मैंने कितने बार बेंट अप, मतलब आपके पास बेंटा बार कितना शेयर रेजिस्ट करेगा। तो n कितने है? 2। आपने 2 बार बेंट अप किए, 0.87 fy। अब यहां पर fy कितना आएगा? 250 या 415? यहां fy कितना आएगा? 250 या 415? 415 आएगा, बिकॉज दीज आर बेसिकली मेन रिइंफोर्समेंट। आपने उसी को बेंट अप किया, गलती मत कर देना 250 पुट करके। 415 आएगा। ठीक है, एएसवी एक बेंट अप बार का एरिया कितना था? 16, 6 नहीं है बिकॉज मेन बार बेंट अप हुई है, साइन 45। तो निकाल दो कितना आ गया ये। बेंटा बार ने कितना रेजिस्ट किया शेयर? बेंटा बार ने शेयर कितना रेजिस्ट किया? हरी अप गाइस। वन 102,662.58 यही आ रहा सबका। तो क्या ये VU बाय एस, VU/S/2 से ज्यादा है? क्या ये VU/S/2 से ज्यादा है? डेफिनेटली ज्यादा है, बट कभी ज्यादा होना नहीं चाहिए। इट शुड नेवर मोर देन VU/S/2। ठीक है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। 50% से एक्सीड कर गया। टोटल शेयर कितना था आपके पास? 66400। उसके 50% से ये ऊपर रेजिस्ट कर चुका है, मतलब ऊपर ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन हमने मैक्सिमम शेयर उसको रेजिस्ट कितना करवाना था? 50%। 50% ऑफ VUS, 50% ऑफ VUS is 33200.04। ऑल्दो वो ज्यादा कैरी कर सकता है एज पर द फॉर्मूला, लेकिन आपने ज्यादा कैरी अपने इन द डिजाइन यूज नहीं करना। डिजाइन में आपने बोला कि सिर्फ 50% रेजिस्ट करेगा, जो बाकी का 50% होगा वो आपके पास वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट रेजिस्ट करेगी। तो बाकी का स्टेप नंबर 6 जो डिजाइन ऑफ वर्टिकल स्टीयर।
गाइस समझ आ रहा है ना पॉइंट बेंट अप का? फॉर 33200.04 न्यूटन। बाकी का जो बचा 50% वो ये रेजिस्ट करेगी वर्टिकल स्टीरअप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। ठीक है, तो यहां पर पुट करो। अब जो बाकी जो आपके पास वर्टिकल रिइंफोर्समेंट है उसकी अपनी स्पेसिंग निकाल दो। 0.87 F by ASB into D 460 divided by total shear which has to be resisted 33200.04। तो निकालो यहां से कितनी स्पेसिंग आ गई है। नहीं विजय, दोबारा से आपको नहीं करना। ज्यादा कैरी कर रहा कोई पंगा नहीं, कम अगर कम भी कैरी करता तो भी कोई पंगा नहीं, बट इन द डिजाइन जनरली भी एज्यूम दैट कि 50% ही कैरी करेगा। लेकिन दोबारा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है विजय? सर बट जो मैक्सिमम कैरी कर ही चुका उसको कम थोड़ी कर। नहीं करने तो कैरी, हमें कोई कहते नुकसान तो नहीं है ना उससे। मैं तो एक्स्ट्रा अपनी वर्टिकल स्टीरअप दे रहा हूं ना, करने तो कैरी, एक्स्ट्रा करने में क्या दिक्कत है? उससे कोई कहते फेल तो ना हो जाएगा स्ट्रक्चर मेरा, वो तो ओवर सेफ होगा स्ट्रक्चर फिर। ठीक है ना, ऑल्दो इट इज अनइकोनॉमिकल, लेकिन ठीक है अगर क्वेश्चन में दिया गया तो आपको फिर तो करना ही है। क्लियर विजय? यस 50% इज मिनिमम। नहीं ऐसा नहीं है, 50% से कम भी कर सकता है वो। मान लो सिर्फ 40% किया उसने, तो बाकी का जो कहते 60% है आपको फिर मेन रिइंफोर्समेंट कर लेगा। लेकिन 50% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा कर रहा है तो बाकी को आप अवॉइड करो, कि मैं उसको मान ही नहीं रहा, वो 50% ही कर सकता है। ठीक है ना, राइट ना? ज्यादा अगर कर रहा है तो बस उसको करने दो, उसको कुछ पंगा नहीं। देखो क्योंकि क्या है कि हमें अभी भी बेंट अप बार का एग्जैक्ट क्या बिहेवियर हमें नहीं पता। ठीक है, अभी कुछ मतलब कि अभी भी ये कहते हैं रिसर्च का ही टॉपिक है कि बेंट अप बार एग्जैक्ट कितना कैरी कर सकता है। दैट्स वाई सेफ्टी को देखते हुए हम उसको 50% तक लेके चलते हैं कि एट मोस्ट 50%, उससे ज्यादा नहीं। कर रहा है तो उसको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से स्पेसिंग आ गई 170.55। नाउ दिस इज अ स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप 170.5, अप्रोक्सीमेटली 170 मिलीमीटर। तो आपको स्पेसिंग देनी कितनी है? या 170 दोगे, या फिर 300 mm दोगे, या फिर 0.75 टाइम्स ऑफ डी विच इज कितना था ये 460 इंटू 0.75, 430 था ना, 430, दैट इज 322.5, या फिर एस बी मैक्सिमम corresponding to nominal shear reinforcement which was 130 millimeter, which was 130 millimeter corresponding to nominal। तो यहां पर भी आपके पास क्या shear reinforcement की स्पेसिंग कितनी आ रही है? फाइनल स्पेसिंग कितनी होगी? 130। यहां पर भी 130 mm ही रहेगी बिकॉज नॉमिनल का सबसे कम है, तो 130 mm थ्रू आउट। ठीक है, सो दिस विल बी द डिजाइन। तो हमने यहाँ पर तीनों केस, जितने केस हो सकते थे हमने यहाँ पर तीनों केस देख लिए। With this, your shear reinforcement chapter is over now. ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज का हो गया।
Clear, guys? Okay. Good night. Yes, you can leave.